Hello everyone, this is Omkar Deshpande. Welcome you back for the business study classes. We have started with the fourth topic, that is business services. In that we have learnt about meaning of services, difference between goods and services, and also characteristics of services, and also the types of services. Later when we come across the services in detail, we came across the first one, that is banking services. In that we have learnt about meaning of banking and also the types of banking in the previous class. Okay, now generally what is bank? What the bank does. The banks are all about accepting money and lending it to the people those who required it. Okay, now in today's class we will study about, or we will learn about, functions of commercial banks. I hope you people have learnt about types of banks. Okay, in that the one of the bank, that is commercial banks. Now what are these commercial bank does? What are these function? That is what in today's class we are going to learn about it. Okay, so when it comes to the bank or banking, the what they does, accepting the money and lending to the people those who are required. Along with that, many other services which they are going to provide it. So we'll learn one by one with the help of functions of commercial banks. In that first one, acceptance of deposit. As a banking sector bank, what they does, the first thing, they are going to accept the money in the form of various deposits from the general public, in the form of savings, in the form of fixed deposit, in the form of recurring deposit. So there are different ways that through that they are going to accept money from the public. This is the first function what they are going to do it out. Okay, so deposit are the basis of the loan operation, since banks are both borrowers and lender of the money. Generally bank does that both the thing. One side it borrows, second time it lends to the people. As borrower they pay interest. When they take money from the public in the form of borrowings, they pay the interest, and as a lender they grant loan and get the interest. Like how in simple language, they accept the money from the borrowers in the form of various deposit, and they pay them the interest, and on the same money they are going to give it to those people those who are required. Like for example, if you see those who want vehicle loan, housing loan, for a business loan, so for them, those personal loans, for them they will give and they will take an interest from them. This is what the first function does, that is acceptance of deposit. Now the second is about lending fund. Accept करके money पैसे आने के बाद में वो पैसे से करोगे क्या? What they are going to do it out, कि they are going to spend it, they are going to give it to those people who are required for that. That is what about lending of funds. So the second major activity of commercial banks is to provide loans and advances out of the money received through deposit. Whatever deposit which they have received it, for them, whatever deposit they have received it, now those who want loan, those people, they will give the loans and advances to those people who are required for that. The advances can be made in the form of overdraft, the overdraft which they are going to give. Then what do you mean by overdraft? Overdraft in the sense what, if you have the 100 rupees in your account, if you give the check of rupees 110 rupees, that excess of 10 rupees bank is going to pay on behalf of you on the standing instruction. So for what the 10 rupees they are going to pay, that is called as a bank overdraft. Then next is cash credit. They will give the cash credit for the business people, those who are required in that. The credit they will give the cashes. So this is what about cash credit. Then next is discounting trade bills. When it comes to discounting trade bill, whatever your bills are there, on that bills they will discount it out and they will give the amount. For example, if you have the bill of rupees 5,000 rupees for 3 months credit, what it has been given, but example, but if well in advance only that businessman required the money, that time whatever the bill of rupees 5,000 for 3 months is there, after 1 month or after some period of time only they will discount it out, and remaining amount banker will pay to that businessman, and later on that bill whatever amount is there he is going to accept from them, he is going to, bank will going to take from the particular customer. So this is what about discounting of trade bills. Then term loans, different kinds of the loans are there which bank will give to the lending people those who required. And consumer credit, whatever the credit are there, on that basis also they will give the consumer credit facilities they will give. And miscellaneous advances, any other reasons advances what they required, that also they are going to give it. The funds let out by banks contribute to the great deals to trade. Now what this bank is going to give the money, lend the money to the people,
according that will help to build them the trade, that will help them to build an industry and transport and other business activity. To run a business activity smoothly, they require the fund. Now this fund will be provided by the bank to the businessman. This is what that lending function does. And apart from accepting money and lending money, the next is the check facility. I hope that you people have saw the check. Okay, now checks in the sense what it is one of the facility which banker will give to their customers. So now bank render a very important service to their customers by collecting their checks drawn on the other bank. The check is the most developed credit instrument, a unique feature and functions of bank for the withdrawal of deposit. Now when it comes to the check, instead of getting lot of funds on the hand and going from one place to another place, now easily the check is the easiest way to make a payment. By issuing the check, that particular bank account, in that all amount will be credited it out. So like that, the check is the one of the facility which help us to reduce the लिक्विड कैश पोजीशंस. ओके, लेट कैश बाय हैंडलिंग द कैश लेके यहाँ वहाँ पर अगर घूमते जाना है, इससे अच्छा क्या है हम चेक देने के बाद में इजीली उन लोगों को अकाउंट में डिपॉजिट में पैसा भी होगा. एंड दैट्स व्हाट बाइंग एंड व्हाट एक्सेप्टिंग लेंडिंग, ये सब कुछ बैंक लोगों ने करके लेगा. इससे क्या होगा, एक बिजनेसमैन को रिलीफ तो होगा. जिसको चेक देना है चेक लिख के दे देते हैं, उनका अकाउंट में पैसा आ जाता है. और जिसके पास से अकाउंट से पैसा लेना है तो उनके चेक डाल के हमारा बैंक अकाउंट में डाला तो वो भी हो जाता है. सो लाइक दैट दिस इज व्हाट द यूनिक facility which banker will give to their customers. नेक्स्ट आता है रेमिटेंस ऑफ द फंड. तो अपार्ट फ्रॉम ये तीनों, अगर एक्सेप्टिंग हो जाता है, लेंडिंग हो जाता है, उसके बाद में चेक का होने के बाद में देर आर सम अदर फैसिलिटीज आर देयर विच इवन बैंकर प्रोवाइड, दैट इज रेमिटेंस ऑफ फंड. अनदर साइलेंट फीचर्स ऑफ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक इज ऑफ प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ये एक फैसिलिटी देता है कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसा कि फंड ट्रांसफर करते हैं हम, आरटीजीएस करते हैं या फिर एनईएफटी करते हैं, एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट को डायरेक्टली हम क्रेडिट करते हैं, ये सब फैसिलिटीज भी बैंक प्रोवाइड करेगा. ऑन द अकाउंट ऑफ द इंटर कनेक्टिविटी ऑफ द ब्रांचेस, द ट्रांसफर ऑफ द फंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूजिंग द बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर्स और मेल ट्रांसफर और नॉमिनल कमीशन चार्जेस, डीडी फैसिलिटी. ऐसे बहुत सारे फैसिलिटीज जो इंटर कनेक्टिविटी, एक ब्रांच से और एक ब्रांच, एक कस्टमर को और एक कस्टमर फंड्स देने में बैंक हेल्प करेगी और उसके लिए थोड़े कमीशंस रहेगा, वो भी चार्ज करेंगे. सो द बैंक इशू अ ड्राफ्ट फॉर अ अमाउंट ऑफ इट्स ओन ब्रांचेस एट अदर प्लेसेस और अदर बैंक सेट दोज प्लेसेस. द पेई कैन प्रेजेंट द ड्राफ्ट ऑन अ ड्रॉइज बैंक एट हिज प्लेस एंड कलेक्ट द amount. So like that, these are the many facilities what it is there. They are, as a banker, they are going to provide to their customers. तो नेक्स्ट आता है अलाइड सर्विसेज. व्हेन इट कम्स टू अलाइड सर्विसेज, अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी अदर काइंड्स ऑफ सर्विसेज विल प्रोवाइड, लाइक इन एडिशन टू अबव फंक्शन बैंकर ऑल्सो प्रोवाइड अलाइड सर्विसेज सच एज बिल पेमेंट. आजकल आपको पता है लाइट बिल, फोन बिल सब गूगल पे, फोन पे, इससे थ्रू आप पेमेंट करते हो, घर बैठे बैठे आप पेमेंट करते हो. तो ये एक होता है लॉकर फैसिलिटीज आपको बैंक यूनिक प्रोवाइड करती है. अंडर राइटर सर्विस, जो स्टॉक में शेयर इन्वेस्टमेंट करने और उसके बारे में आपको गाइडेंस भी देगा, अंडर राइटर सर्विसेज. दे ऑल्सो परफॉर्म अदर सर्विसेज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स. आजकल बाइंग ऑफ सेलिंग ऑफ शेयर्स में भी बैंक आपको मदद करेगी. एंड डिबेंचर ऑन इंस्ट्रक्शंस एंड अदर पर्सनल सर्विसेज लाइक पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, प्रीमियम, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड. मतलब आजकल जो भी आप पेमेंट करना है या पैसा लेना है, इस सब में बैंक इन्वॉल्व हो जाता है, जहां पर आपका एक एक्टिविटी कम करने में, आपको थोड़ा बर्डन कम करने में बैंक लोग भी मदद करेंगे. ये सब कुछ एडिशनल सर्विसेज व्हाट बैंकर विल प्रोवाइड टू यू पीपल, ये सब हो जाता है अलाइड सर्विसेज. तो इसके बाद में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे, व्हाट इज ई बैंकिंग. ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग. आजकल ये जो ज़्यादा ही जनरेशन है, इलेक्ट्रॉनिकल जनरेशन चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन या टेक्नोलॉजिकल बेस्ड चल रहे हैं. तो ई बैंकिंग मतलब क्या है, एक सिंपल है इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग मतलब थ्रू बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी दे विल ट्रांसफर फंड, दे विल एक्सेप्ट द मनी एंड दे स्टार्टेड मेकिंग द पेमेंट. तो ये सब कुछ आज इलेक्ट्रॉनिक वे से बिजनेस कर रहे हैं. ओके, अभी देखो कोई तो एक बिजनेस रहेगा, सप्लायर आएगा, उसको हम फंड ट्रांसफर कर सकते हैं. आजकल आपने देखा है अमेजॉन के ऊपर जो गुड्स हम परचेस करते हैं डायरेक्टली ऑनलाइन पेमेंट करते हैं. सो मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन. ये सब एक्टिविटी ई कॉमर्स में आ जाता है, दैट इज ई बैंकिंग में आजकल एक्टिविटीज चल रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग. बाय यूजिंग द इंटरनेट कनेक्टिविटी दे यूज्ड टू मेक अ ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली बाय मेकिंग द पेमेंट, एक्सेप्टिंग ऑफ पेमेंट, ये सब कुछ चीजें आजकल चल रहा है. ओके, तो अभी देखेंगे ई बैंकिंग इज अ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मेनी बैंक्स.
मैनी बैंक्स ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज that allows a customer to conduct banking transaction such as managing services, checking the account, applying for the loan or paying the bills over the internet by using the personal computer. So like that many other services too आज इलेक्ट्रॉनिक, मतलब एक ज़माना था जब कस्टमर यूज टू गो टू द बैंक, ही यूज टू स्टैंड इन अ क्यू एंड ही हैज़ टू टेक द मनी एंड ही हैज़ टू डिपॉजिट, ये सब कुछ चलता था. बट आजकल ऐसा जनरेशन में ऐसा नहीं है. इजीली कुछ भी पेमेंट हो जाता है, डिपॉजिट करते हैं हम घर बैठे बाय यूजिंग द इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, हम इजीली पेमेंट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो मेनी थिंग्स आर अराउंड द सिटी विच विल बी गोइंग ऑन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग. कौन सा भी अगर पेमेंट करना हो, लोन के लिए एप्लीकेशन डालना हो, बैंक अकाउंट चेक करना हो, ऐसे मेनी अदर थिंग्स आर देयर विच थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली वी आर मैनेजिंग द एक्टिविटीज. ओके, अगर ये ई कॉमर्स फॉलो किया तो एक क्या होगा बेनिफिट, द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक्स. बैंक के लिए क्या बेनिफिट होगा? फर्स्ट थिंग इज आउट ई बैंकिंग प्रोवाइड अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर और ऑफ ब्रांचेस. एनी पीसी कनेक्टेड टू द मोडम एंड टेलीफोन हैविंग अ इंटरनेट कनेक्शन कैन प्रोवाइड द कैश विड्रॉवल नीड ऑफ द कस्टमर्स. तो ये क्या है, हर एक ब्रांच में आजकल इंटरनेट कनेक्टिविटी है. एक बस पीसी चाहिए, उसके एक मोडम चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, थ्रू टेलीफोनिक चाहिए. इससे क्या होता है, कैश विड्रॉवल, कैश एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ सर्विसेज कस्टमर को बैंक प्रोवाइड करती है. दिस इज वन ऑफ द बेनिफिट. देन सेकेंड इज लोड ऑफ ब्रांचेस can be considerably reduced by establishing centralized database and by taking over some of the accounting functions. तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आजकल ब्रांचेस को इतने सारे बैंकिंग में काम रहते थे, बट ड्यू टू दिस ई बैंकिंग से वजह से क्या हो रहा है, उनका बर्डन थोड़ा रिड्यूस हो रहा है. वाई? बिकॉज एवरीथिंग आजकल सेंट्रलाइज कनेक्टिविटी डेटा रहता है. इससे ट्रांजेक्शन्स भी आसान हो जाता है, पेमेंट करना भी आसान है, पेमेंट एक्सेप्ट करना भी है, और जो भी सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक बेस वो कर सकते हैं. इसलिए उनका वर्क भी थोड़ा रिड्यूस हुआ है बैंकिंग के लिए. यही एक एडवांटेज बेनिफिट है. तो नेक्स्ट देखेंगे बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू कस्टमर्स. कस्टमर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट है? ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर्स सर्विसेज, 365 डेज अ ईयर सर्विस टू कस्टमर ऑफ द बैंक. जब बात इलेक्ट्रॉनिकल पेमेंट का आ जाता है तो यहाँ पर एक फायदा है कि 24/7 365 डेज मैनेज करते, आराम से हम मैनेज कर सकते हैं. इंटरनेट तो कभी स्टॉप नहीं होता, तो कभी भी दिन रात आपको कभी भी चाहिए तब आपको पैसा मिलेगा एटीएम से या इंटरनेट से आप पेमेंट करोगे दूसरों को. तो आजकल कैसा है, 24 आवर्स कब चाहिए कब पेमेंट भी कर सकते, पेमेंट भी ले सकते. ये एक सर्विसेज जो कस्टमर को बेनिफिट मिल जाता है. एंड सेकेंड वन, कस्टमर्स कैन मेक सम ऑफ द परमिटेड ट्रांजैक्शंस फॉर द ऑफिस और हाउस और वाइल ट्रैवलिंग एट अ मोबाइल टेलीफोन. कहीं भी जाने जो थ्रू ऑफिस, थ्रू रोमिंग और थ्रू कहीं भी ट्रैवलिंग करते हो, कहीं पर भी वो पेमेंट आजकल कर सकते हैं, पेमेंट ले सकते हैं, दे सकते हैं. एवरीथिंग कैन बी पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग. ये एक बेनिफिट मिल जाता है. नेक्स्ट, इट incubates a sense of financial discipline by recording each and every transaction. each and every transaction का यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है. जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक वे से पेमेंट करते हो, पेमेंट एक्सेप्ट करते हो या कुछ भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो जाता है, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है. मतलब जब रिकॉर्ड हो जाता है तो हमको रिकॉर्ड्स भी मिल जाते हैं, तो सब डेटा मेंटेन कर सकते हैं हम. तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है. देन उसके बाद में फोर्थ पॉइंट है ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक. कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज बिकॉज ऑफ 24/7 एक्सेस हो जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. इससे एक बेनिफिट हो जाता है. देन नॉट लिमिटेड बाय द वॉल ऑफ द ब्रांचेस एंड लेस रिस्क ऑफ ग्रेटर सिक्योरिटी टू कस्टमर्स एज दे कैन अवॉइड ट्रैवलिंग विद द कैश. लॉन्ग टाइम तक ट्रैवलिंग का जो कैश है वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं, कैश लेके जाना आना या अवॉइड कर सकते हैं. इजीली मोबाइल से हम पेमेंट कर सकते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी से हम वन ब्रांच से अनदर ब्रांच कर सकते हैं, कस्टमर के अकाउंट में डाल सकते हैं. तो ये सब बेनिफिट जो है कस्टमर को मिलेगा विद द हेल्प ऑफ ई बैंकिंग. ओके, तो पहले एक ज़माना था जब कैसा था कि हम बैंक को जाते थे और वहाँ पर क्यू में रुक के पेमेंट करते थे, पैसे लेते थे, लेके एक जगह से लेके दूसरे जगह तक हम आते थे, ये सब कुछ थे. बट आजकल ऐसे नहीं है, घर बैठे बैठे हम सब ट्रांजैक्शंस करते हैं. तो इसके सब के वजह है दैट इज ई बैंकिंग. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ऑल ट्रांजैक्शंस विच वी आर डूइंग सक्सेसफुली एंड इजीली वी आर ऑपरेटिंग द थिंग्स. ओके, तो ये रहा, दिस इज व्हाट अबाउट द बेनिफिट ऑफ ई बैंकिंग टू द कस्टमर्स. ओके, थैंक यू.